say you need your space, then pull me close. I read your silence, louder than most. One day you'll walk. Hi guys, I'm Achal. Welcome to our channel, Our Travel Trends. Today we are going till Austria and we are going by our car from Amsterdam. So it's a long journey from Amsterdam. It's going to be around 12 hours of journey. So we thought to break it up. So today we have started from Amsterdam and we have already reached Belgium. We are going to go till Luxembourg and going to stay over there. And then tomorrow we are going to start again from Luxembourg to Austria. So come along, we'll take you along our car trip and make you enjoy all the scenic views which we are also enjoying. Welcome to the second day of the trip. We are in Luxembourg. We are meeting our friends over here and they will be joining us in the trip. Meet our friends. Hello. Kiara and Shivam. And here is Mohit. So now today morning, today is Thursday. Yes. We are starting at 9:30 and we are going to go from Luxembourg to Germany and then to Austria. See you guys. So we took a stop now. We started our journey from Luxembourg. It was around 650 kilometers from Luxembourg to Austria. So now we have traveled around 150 and we are taking a stop. We bought some homemade food so that we all can eat. See how parathas, cutlets, all thanks to Kiara. Traffic in Europe. ऐसा लग रहा है अभी भी ट्राई भी कर राउंड 2 क्योंकि हमें धूप ज़्यादा लग रही थी तो हम लोग नीचे बैठ के मस्त अपना खाना खा रहे ये थके हुए फेसेस देख के गाइस प्लीज इग्नोर कल हम आपको बहुत अच्छे दिखेंगे हाँ अब हम खाएंगे छोले फिर चुराई हुई चम्मचों के साथ और मीठे बन के अभी 100 किलोमीटर बचा है और कितना टाइम लगेगा 1 आवर दिखा रहा है लेट्स तो सही लग रहा है Welcome to Austria guys कैसा कॉर्नर जैसा बाथरूम दिया वाह वॉलपेपर कितना सही है इसका ये कितना अच्छा है यार वॉलपेपर ना ये ब्लॉग अपडेट गाइस सो हम लोग साल्सबर्ग अराउंड रात को 9 बजे पहुंच गए थे हम लोगों ने अपना होटल चेक इन किया एंड वी वर सो टायर्ड तो हम थोड़ा सा फ्रेशन अप होके वी वेंट फॉर डिनर सो वी हैड आवर डिनर लेट हो गया था बिकॉज यहाँ पे सब चीज़ें यूजुअली 9 बजे के अराउंड बंद हो जाती हैं तो जो भी ओपन था इट वाज अ फलाफल शॉप एंड मैकडी सो वी टुक सम टेक अवे एंड वी हैड आवर डिनर एट होटल so that's the update so today we are really tired and we want to take rest and tomorrow we will be exploring Salzburg so I will see you again tomorrow morning we got ready we are all out and we are going to explore the city we'll take you along with us भूखे लोग देख रहे हैं कुछ तो मिला है दिस इज अ रेस्टोरेंट this is what we ordered This is the tourist information center. We bought our Salzburg card online and we took the physical card from the tourist information. So these are the cards where most of the attractions are included in this.
After doing a good stomach full brunch, we are heading towards Mozart's residence. You all know Salzburg is the birthplace of Mozart, and there are a lot of museums and information about Mozart which you can get here. So first stop, Mozart residence. ये दो नए प्रेमी युगल दिस इज द मोजार्ट्स हाउस। मोजार्ट यहाँ रहता था, देखते हैं कैसे रहता था, अच्छे से रहता था नहीं रहता था। घर तो काफी बड़ा है उसका। सो गाइज, ये है मोजार्ट रेसिडेंस। यहीं पर लेजेंडरी कंपोजर मोजार्ट अपनी फैमिली के साथ रहते थे और अपनी सारी फेमस कॉम्पोजिशंस उन्होंने यहीं पर क्रिएट की थी। आज ये म्यूजियम है जहां उनके सारे ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट्स, लेटर्स और पर्सनल बिलोंगिंग्स देखने को मिलते हैं। अगर आप साल्जबर्ग आ रहे हो तो हिस्ट्री और म्यूजिक के ये आइकॉनिक स्पॉट को बिल्कुल मिस मत करना। We are at the beautiful log bridge of Salzburg. If you see, यहाँ पे सब लोगों ने अपने अपने नाम लिख के, दोनों पार्टनर्स ने, they have locked their love for eternity. Usually यूरोप में ये बिलीफ है कि अगर आप ऐसे ब्रिजेस पे अपना नाम लिख के अपने पार्टनर के साथ लॉक कर दो, so your love will last for infinite times. But this log bridge has a very good view of the fortress of Salzburg as well. So look how amazing this view is. This is the Mozartplatz square. See this huge statue of Mozart. सो वी आर बैक एट मोजार्टप्लात्ज स्क्वायर। मेरे पीछे मोजार्ट की एक आइकॉनिक स्टैचू है जो मैंने आपको पहले दिखाई थी, और सामने ही ये एक ब्यूटीफुल फाउंटेन है। ये इस स्क्वायर का चार्म है और सबसे फोटोजेनिक प्लेस है इस स्क्वायर के पास में। कुछ ही स्टेप्स आगे चल के यहाँ पे आता है डोम क्वार्टर साल्जबर्ग। ये रॉयल कॉम्प्लेक्स था जहाँ से प्रिंस आर्च बिशप्स ने पूरे साल्जबर्ग के ऊपर रूल किया था, और अंदर ब्यूटीफुल पैलेस में बहुत सारे रूम्स, उनके म्यूजियम्स और एक टेरेस है जिससे पूरी की पूरी सिटी का अच्छा सा व्यू आता है। टूर की स्टार्टिंग होती है ग्रैंड स्टेयरकेस और रॉयल रूम से, जहाँ से पहले बिशप्स अपनी ऑफिशियल मीटिंग्स और सारे सेरेमनीज किया करते थे। वॉल्स पे आपको बहुत ही ब्यूटीफुल आर्ट और शैंडलियर्स दिखाई देंगे, जिससे पता चलता है कि ये लोग कितने रॉयल थे। योर हाइनेस इज रेडी। रियली यहाँ पे बहुत सारे एक्सेसरीज दिए हुए हैं। यू कैन ऑल ट्राई दोस एंड गेट योर पिक्चर्स क्लिक्ड। एंड द हाईलाइट ऑफ द टूर वॉज दिस टेरेस कॉरिडोर वॉक। यहाँ से आपको साल्जबर्ग कैथेड्रल, रेसिडेंस स्क्वायर और पूरे ओल्ड टाउन का व्यू मिलता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसी क्वार्टर से निकल के आप कैथेड्रल के अंदर एंटर कर सकते हो। दोनों चीज़ें इंटरकनेक्टेड है। We have reached the funicular ride here. Price is 14 euro, but it's included in the cart. We have started funicular.
साहब, नीचे देखो। क्या व्यू है। We have reached. कितना जल्दी, dude, what happened? अब हम आ गए हैं होइन साल्सबर्ग फोर्ट्रेस में। ये फोर्ट्रेस 900 इयर्स पुराना है और यूरोप का बेस्ट प्रिजर्व्ड कासल्स में से एक है। इमेजिन करो, ये कासल सिर्फ एक माउंटेन पर सिचुएटेड है। हाउ अमेजिंग दैट इज। पहले के टाइम में ये एक मिलिट्री स्ट्रॉन्ग होल्ड था जहाँ से पूरे के पूरी सिटी को प्रोटेक्ट किया जाता था। लेटर ऑन यहाँ के प्रिंस ने इसको अपना रॉयल रेसिडेंस भी बना लिया था। इस फोर्ट्रेस के अंदर आपको रॉयल रूम्स, डंजन्स और वेपन्स की सारी चीज़ें मिलेंगी जो आपको देखने में बहुत मज़ा आएगा। सबसे अमेजिंग पार्ट है ये पैनोरामिक व्यू। यहाँ से आपको पूरा 360 डिग्री व्यू मिलता है साल्सबर्ग का एंड इट इज़ अमेजिंग। आप एल्प्स देख सकते हो, पूरी की पूरी सिटी देख सकते हो। नाउ लेट्स एंजॉय द व्यू टुगेदर। Wanna clear a bottle of Cabernet. Wanna stay home, not even drink. Wanna get out of my own head. Wanna lay down, overthink. I wanna cry every tear I got. Put on a dress, be a stranger's dream. Lock up this heart of mine, wanna wear it. फोर्ट्रेस एक्सप्लोर करने के बाद प्लान तो सीधा डिनर करने का था, बट इतना ब्यूटीफुल वेदर और इतनी पीसफुल वाइब देख के हमने सोचा कि लेट्स टेक अ स्टॉप एंड नदी के किनारे एंजॉय करते हैं। डिनर तो हम थोड़ी देर बाद भी कर सकते हैं। तो हम आ गए हैं रिवर के किनारे थोड़ा चिल करने। कभी कभी ट्रैवल का बेस्ट पार्ट सिर्फ साइट सीइंग नहीं होता, बल्कि ऐसे ऐसे मोमेंट्स को, ऐसी जगहों को एंजॉय करना भी होता है। I wanna wear it on my sleeve. I kinda wanna hate you, but I wanna love you too. I wanna hold you close and let you go, find someone new. And I wish it wasn't, but my mind's made up in two. What's killing me the most is knowing two things can be true. Wanna throw away your vanity. Wanna wear it to sleep tonight. Wanna wipe our slate clean. Wanna pick this thing up right. Well, we भाई किसी और को मार। वाह वाह, क्या रहा वाह। मतलब ऐसे नहीं फेंकना है। तुम लेफ्टी हो? ठीक है। ऐसे थोड़ा स्पीड से, मैं भी। ऐसा लेना पतला वाला, कैसा? थोड़ा ऐसा पतला। गाइस, डिनर के लिए हम आ गए हैं ऑगस्टाइनर ब्राउ मुलिन। ये ऑस्ट्रिया के ओल्डेस्ट ब्रूअरीज में से एक है और यहाँ का फेमस बियर गार्डन सुपर डुपर लाइवली है। और सबसे कूल बात ये बताऊँ, आपको यहाँ पे सारे के सारे ड्रिंक्स इन सेरामिक कप्स में मिलती है, जो कि आप रीफिल भी कर सकते हो सेमी मग्स में। इतना अमेजिंग एटमॉस्फेयर और यहाँ का फूड भी बहुत ही मज़ेदार है। अगर आप साल्सबर्ग आ रहे हो तो ये प्लेस मस्ट विजिट है। चाहे यहाँ पे ड्रिंक्स के लिए आओ या फिर सिर्फ वाइब चेक करने के लिए, इसका एक्सपीरियंस लेने में आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। अब वो कुछ नहीं कर सकता। Another day in Salzburg, we all got ready. We are heading out to see all the leftover places which we were not able to see yesterday. And उसके बाद हम लोग जाएंगे Hallstatt and we will explore the lakes of near the Salzburg area. So we have a pretty good day planned, but it's raining already.
today, and the view is like so good. If you can see, the rain has, you know, मतलब साल्सबर्ग की ब्यूटी को और निखार दिया रेन ने. ज़्यादा ना हो तो अच्छा है, थोड़ी बहुत हो तो हम लोग घूम भी पाएंगे और इस प्लेस को एंजॉय भी कर पाएंगे. कम अलॉन्ग. बारिश. It's a rainy day today, यस. It's day 3. but हमें Day 3 to घूमने से कोई नहीं रोक सकता. बारिश आए तूफान आए, हम ये जगह एक्सप्लोर करके ही जाएंगे. क्योंकि बुकिंग हो चुकी है ना. और मजे की बात ये थी कल एकदम जलती गर्मी थी. आज बारिश. बस बारिश. This is Europe. Be ready for anything and everything in Europe. We are at Mirabel Gardens and look how beautiful these gardens are. This is the garden where Sound of Music was shot. I haven't seen the movie, but I'm planning to see it now because it's been talked about whole over Salzburg. So we have heard about Sound of Music like so many times. There are souvenirs you can get for Sound of Music. There are places, there are Sound of Music tours available over here. And I think it is worth to see that movie as well. But look at this garden, how beautiful it is. You can also see the fortress view from here. और गाइस, साल्सबर्ग का एडवेंचर अभी ख़त्म नहीं हुआ है. ये बस पार्ट 1 था और पार्ट 2 में हम टॉप ऑफ साल्सबर्ग और हॉलस्टाड भी कवर करने वाले हैं. एंड ट्रस्ट मी, नेक्स्ट पार्ट और भी अमेजिंग होने वाला है. सो स्टे ट्यून्ड, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में. बाय बाय.